Good morning students. This is English class and today we will discuss about the noun possessive case. Possessive case or possessive forms of nouns show belonging or ownership. We are use apostrophe s and of pattern in possessive forms of nouns. We are used with living things apostrophe and apostrophe s and with non-living things of pattern. See on this page, it is clear. With living things we are used apostrophe and apostrophe s and non-living things use of. See example. First one. Mohit's watch is costly. Okay, in this sentence, Mohit, it is a living things. Then and noun. First we are write Mohit and use the apostrophe s after possession. Watch is costly. Okay, living things. First we are write noun plus apostrophe s after possession or ownership. And see second example. Non-living things. The wheel of the car is punctured. Okay, car. In this sentence, car. It is a noun. In this sentence, Mohit. It is a noun. Mohit. It is a living thing. Then first we are write Mohit apostrophe s. Watch is costly. Okay, Mohit's watch is costly. Living things. Second example, non-living. The wheel of the car is punctured. In this sentence, the car, it is noun. Okay, non-living things. First we are write possession. The wheel after of, add of, noun. The car is punctured. The wheel of the noun is punctured. Now we are discuss about some rules about possessive forms of nouns. Rules 1. The possessive sign is generally used with the nouns of living things. Point 1. If the noun is singular, add apostrophe s. See example. Boy. Boy. It is a singular. Boy. Then use the apostrophe s. Boy's book. The dog. Dog, it is singular. Then write apostrophe s. The dog's food. My brother. Brother. In this sentence, brother, it is singular. Then my brother's football. Second point. If the noun is plural, point A. To plural nouns that end in s, add an apostrophe only. Example, girls' college. Girls, it is plural. Dogs, it is plural. Okay, and end in s. Then girls' college. Girls, use the apostrophe college. The dogs, apostrophe food. Point B. To plural nouns that do not end in s, add an apostrophe and s. Example, the men's shirt, the children's toys. In this sentence, men's, children, plural, and do not end in s. Then we are use apostrophe s.
तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, जब हम लोग पॉजेसिव फॉर्म्स को नाउन्स में यूज़ करते हैं देन एपिस्ट्रॉफी एज ऑफ पैटर्न का यूज़ करते हैं। एपिस्ट्रॉफी एंड एपिस्ट्रॉफी एज लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं एंड ऑफ पैटर्न का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। और जब हमारा नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, और जब हम लोग नाउन प्लूरल फॉर्म में राइट करते हैं, मीन्स जब हम लोग प्लूरल नाउन्स को राइट करते हैं, ठीक है, तो प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग केवल एपिस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं जब हमारे नाउन का लास्ट अल्फ़ाबेट एस हो। मीन्स जब हमारे प्लूरल नाउन्स का एंड अल्फ़ाबेट एस से हो तब हम लोग ओनली एपिस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, एपिस्ट्रॉफी साइन यूज़ करते हैं। ओके, it is apostrophe sign, okay, to plural nouns that end in s add an apostrophe only. और हमारा प्लूरल नाउन्स जो है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट एस ना हो, ठीक है, वो किसी भी लास्ट अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, एन हो, और जैसे मैन लास्ट अल्फ़ाबेट एन है, चिल्ड्रेन लास्ट अल्फ़ाबेट एन है, तब हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। मीन्स प्लूरल फॉर्म में अगर लास्ट अल्फ़ाबेट हमारा एस है, जो भी नाउन हम राइट कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म में लास्ट अल्फ़ाबेट हमारा एस है, तो हम उस टाइम केवल एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। अगर हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट एस नहीं है तब हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। देन स्टूडेंट्स क्लियर ना नॉन पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स, ठीक है, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स। पॉजिटिव केस जब हम नाउन में यूज़ करते हैं तो 3 पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, एपिस्ट्रॉफी लिविंग थिंग्स के साथ विथ लिविंग थिंग्स, एपिस्ट्रॉफी एंड एपिस्ट्रॉफी एस, एंड नॉन लिविंग थिंग्स ओनली राइट ऑफ एंड इन सिंगुलर फॉर्म। व्हेन वी आर राइट अ नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, जब हम नाउन को सिंगुलर फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे लिविंग थिंग्स में, ठीक है, लिविंग थिंग्स के हम नाउन राइट कर रहे हैं और नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो एपिस्ट्रॉफी एस राइट करेंगे। अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म राइट कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में अगर हमारा नाउन जो है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट एस है तो उस टाइम हम लोग केवल एपिस्ट्रॉफी साइन यूज करेंगे, ठीक है, केवल एपिस्ट्रॉफी साइन एपिस्ट्रॉफी यूज करेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में हमारा जो नाउन है उसका लास्ट वर्ड एस नहीं है तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस राइट करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। Now we are discuss about second point. Second point is non-living things are or objects are used in possessive case when they are personified. Means non-living things or objects are used in possessive case when they are personified. Personified, one word. Personified means student मानवीकरण, ओके, मीन्स इन इंग्लिश रिप्रेजेंट एज लिविंग। कोई वर्ल्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा हो लिविंग फॉर्म में, लिविंग थिंग्स में, डेट कॉल्ड पर्सोनिफाइड। सी एग्जाम्पल अर्थ सरफेस, कोर्स ऑर्डर। तो क्लियर ना स्टूडेंट, नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट आर यूज्ड इन पॉजिटिव केस देन when they are personified, means नॉन लिविंग थिंग्स हो या ऑब्जेक्ट हो, वो पॉजिटिव केस में
पॉजिटिव केस में भी यूज़ करते हैं जब हमारा नाउन पर्सोनिफाइड हो. पर्सोनिफाइड मीन्स रिप्रेजेंट एज लिविंग. ओके, एग्जाम्पल अर्थ सरफेस, कोल्ड्स ऑर्डर. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट रूल थर्ड. Possessive case is used with nouns denoting time, space, weight, money. Example 3 days apostrophe live. 3 days. 3 days. Days, it is a plural. Then we are use only apostrophe. Okay, 3 days live. Days, it is plural. Then we are use there only apostrophe. And second example, a kilo's weight. A kilo, it is singular. 1 kilo. A kilo's weight, it is singular. Then we are use the apostrophe s. Means हमारा टाइम, स्पेस, वेट, मनी अगर ये नाउन फॉर्म में है तो इसके साथ भी हम लोग एपिस्ट्रॉफी एंड एपिस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे. इफ टू और मोर नाउन्स jointly possess something, then possessive apostrophe s is put on the letter only. Example, Mohit and Rohan's school is very far. Clear? If two or more nouns, Mohit and Rohan, both are noun, okay, jointly possess something, then possessive is put. दोनों joint and in this sentence, Mohit and Rohan, it is noun and it is a joined word, okay. Then if two or more nouns jointly means Mohan and Rohan's, it is noun. Possess something means किसी पर अधिकार, ठीक है, possess अधिकार किस पर, स्कूल, ओके. School is very far. Then that time we are put the apostrophe as letter only. अगर ऐसा कोई होगा जिसपे एक ही चीज़ पर हमारा possess होता है, ठीक है, जो नाउन है वो टू और मोर नाउन्स, ठीक है, टू और मोर नाउन्स, मोहित एंड रोहन, इट इज़ टू नाउन्स, ठीक है, पर इन दोनों का क्या है, possess जो है स्कूल है. और स्कूल तब हम उस टाइम क्या करेंगे, जो हमारा एपिस्ट्रॉफी एस है वो सेकेंड नाउन पे मीन्स लास्ट नाउन पे केवल यूज़ करते हैं. वे मोहित एंड अगर हम मोहित और रोहन दोनों नाउन पर एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो वो हमारा सेंटेंस जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, मोहित का एंड रोहन का, ठीक है. तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. अगर ऐसा कुछ सेंटेंस होता है मोहित एंड रोहन मीन्स टू और मोर नाउन्स, ठीक है, दो नाउन हो या उससे अधिक नाउन हो, वो ज्वाइंट हो रहे हैं एंड इट इज़ अ ज्वाइंट वर्ड, ठीक है, ज्वाइंट हो रहे हैं. possess something, then possessive apostrophe s is put on the letter only. जो हमारा लास्ट वाला नाउन होगा, ठीक है, टू नाउन है और तो उस टाइम हम दोनों नाउन्स पे एपिस्ट्रॉफी एस नहीं राइट करेंगे, दोनों नाउन पर एपिस्ट्रॉफी एस नहीं ऐड करेंगे. उस टाइम हम लोग अपने लास्ट नाउन पर एपिस्ट्रॉफी एस को ऐड करते हैं. ये रूल है, अगर हम दोनों नाउन पर ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. तो करेक्ट रूल यही होता है जब हम टू और थ्री नाउन्स को राइट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा possess है समथिंग, हमारा possess केवल सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, एक ही चीज़ पर हो, तो हम लास्ट नाउन पर एपिस्ट्रॉफी एस को ऐड करते हैं. It is clear? Rule 4. It is clear? Now students, we are discuss about rule 5. Rule 5 is, if two or more nouns show separate position, possessive sign apostrophe s is put to each noun.
Say example, Mohit's and Rohan's houses are under construction. Okay, in this sentence, Mohit's and Rohan's, ठीक है, both are nouns and both nouns we are use the apostrophe s. और अभी तो आप यही कहिएगा, रूल 4 में अभी बताई हूँ कि जब टू नाउन्स ज्वाइंट हो रहे हो तो लास्ट नाउन पे जो है एपिस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं. अब यहाँ पर जो है मोहित एंड रोहन्स, यहाँ पर दोनों नाउन्स में यूज़ हुआ है. तो अब देखिए डिफरेंसेस देखने के लिए पहले हम लोग रूल 4 को देख लेते हैं वन टाइम अगेन. इफ टू और मोर नॉन ज्वाइंटली पॉजेस समथिंग, द पॉजिटिव एपिस्ट्रॉफी एस पुट ऑन द लेटर ओनली. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग अपना अधिकार, अपना जो पॉजेस कर रहे हैं वो समथिंग, वन थिंग पर ही कर रहे हैं. स्कूल इज मोहित एंड रोहन, स्कूल इज वेरी फार, मोहित एंड रोहन. ठीक है, इन दोनों के हम जो है वो शो क्या कर रहे हैं, स्कूल ही तो बता रहे हैं. नाउन जो है वो दोनों के लिए सेम है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लास्ट नाउन पर एस राइट करते, लास्ट नाउन पे एपिस्ट्रॉफी एस राइट करते हैं. And see rule 5. If two or more nouns show separate position, ठीक है, separate position, यहाँ पर separate position यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, then possessive sign apostrophe s is put to each noun. तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों नाउन के साथ जितने भी नाउन होंगे सबके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेपरेट पोजीशन शो करते हैं. यहाँ पे सेपरेट पोजीशन मीन्स हाउसेज. सी इन दिस सेंटेंस हाउसेस, यहाँ पर हाउसेस जो है ये प्लूरल फॉर्म में राइट हुआ है. हाउसेस जो है ये प्लूरल फॉर्म में राइट हुआ है. ठीक है, तो मीन्स मोहित एंड रोहन्स हाउसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन. मोहित का घर भी है और रोहन का घर है. ठीक है, मोहित एंड रोहन्स हाउसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे सेपरेट पोजीशन का यूज़ हो रहा है, पर रूल 4 में हमारा सेपरेट पोजीशन नहीं था, वहाँ पे सिंगुलर. ठीक है, समथिंग पोजीशन, वहाँ पे समथिंग पोजीशन, वहाँ पर एक ही पोजीशन था. यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेट पोजीशन. देन दैट टाइम पॉजिटिव साइन एपिस्ट्रॉफी एज पुट टू इच नाउन. यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेट पोजीशन ही हो रहा है, यूज़ हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पर हम जो है जितने भी नाउन होंगे, टू और मोर नाउन्स, ठीक है, तो हम उसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस करेंगे. यहाँ पर हाउसेस की बात हो रही है. हाउसेस मीन्स ये प्लूरल है, तो हम मोहित और रोहन दोनों के साथ एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे सेपरेट पोजीशन का बात हो रहा है, रूल 5 में सेपरेट पोजीशन का बात हो रहा है, इसलिए मोहित एंड रोहन दोनों के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे. बट रूल 4 में सेपरेट पोजीशन का बात नहीं हो रहा था, इसलिए जो लास्ट नाउन होता है उस पर हम लोग जो है एपिस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे. हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था. हाँ, ये था पॉइंट 6. पॉजिटिव साइंस एपिस्ट्रॉफी एस यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन. एग्जाम्पल माई सिस्टर इन लॉज हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल. माई सिस्टर इन लॉज, इन दिस सेंटेंस सिस्टर इन लॉज, इट इज प्लूरल फॉर्म, सॉरी, it is compound noun. It is my sister-in-law. In this sentence it is compound noun. Then rule 6. Possessive sign apostrophe as used with the last word of a compound noun. Okay, my sister-in-law's house is very ब्यूटीफुल. देन इन दिस सेंटेंस सिस्टर इन लॉज. ठीक है, सिस्टर इन लॉज जो है ये कंपाउंड नाउन है. सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ. ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है. और कंपाउंड नाउन की जगह पर अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट वर्ड, ठीक है, सिस्टर की जगह सिस्टर्स इन लॉ, हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल करते हैं, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता. क्योंकि ग्रामर के जो रूल है उसको तो फॉलो करेंगे तभी हमारे सेंटेंस करेक्ट होंगे. तो रूल 6 तो यही कहता है ना, पॉजिटिव साइन इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन एंड सिस्टर इन लॉ इट इज अ कंपाउंड नाउन. देन सेंटेंस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल. देन
लॉज, इट इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस नाउन ना, कंपाउंड नाउन माई सिस्टर इन लॉ, तो लॉ इट इज द लास्ट वर्ड, देन वी आर राइट आफ्टर लॉ एट द एपिस्ट्रॉफी एस, आफ्टर लॉ जो है हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस जो है वो ऐड करेंगे। अगर सिस्टर्स के बाद अगर हम लोग राइट कर देते हैं माई सिस्टर्स इन लॉ हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, फिर रॉन्ग होता, उसके मीन्स नहीं निकलते, वो पूरा सेंटेंस रॉन्ग होता है। मीन्स रूल 6 हम लोग को यही फॉलो करना है कि अगर हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं कि कंपाउंड नाउन में, ठीक है, कंपाउंड नाउन में, तो हम लास्ट वर्ड के साथ एपिस्ट्रॉफी एस राइट करेंगे। पॉजिटिव साइन एपिस्ट्रॉफी एस, पॉजिटिव साइन मीन्स एपिस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन राइट कर रहे हैं, कंपाउंड नाउन के साथ हम एपिस्ट्रॉफी का यूज़ हमें सेंटेंस में करना है। अगर हम कंपाउंड नाउन राइट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन मीन्स एपिस्ट्रॉफी एस का हम लास्ट वर्ड के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं माई सिस्टर्स इन लॉ ऐसे नहीं राइट कर सकते, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो माई सिस्टर इन लॉज हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। मीन्स कंपाउंड नाउन राइट कर रहे हैं तो लास्ट वर्ड के साथ हम एपिस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं। I hope it is clear. Now dear students, we are discuss about rule 7. Rule 7 is when two nouns are in apposition, possessive sign is put to the letter only. Example, Tagore the poet's famous book is Gitanjali. Apposition means, you know, apposition means, first we are discuss apposition means, apposition means क्या होता है? Apposition means when two nouns are used for one person. Okay, when two nouns are used for one person. Two nouns है, ठीक है, हमारा two nouns है, पर use किसके लिए हो रहा है? one person के लिए use हो रहा है, ठीक है। To when two nouns are used for one person, second noun is called case in apposition of the first noun. Clear? When two nouns are used for one person and second noun is called case in apposition of the first person. Then I hope apposition meaning is clear. apposition meaning आप लोगों के क्लियर हो गए। तो अब क्या है, हमारा रूल 7 कहता है क्या, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। एग्जाम्पल देख लीजिए, टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि। टैगोर द पोएट्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टू नाउन्स है, एपोजिशन, एपोजिशन, ये ध्यान रखिएगा, रूल क्या कहता है, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन एंड एपोजिशन मीन्स व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर वन पर्सन। टू नाउन है पर उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, एक पर्सन के लिए, ठीक है। व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर वन पर्सन एंड सेकेंड नाउन इज कॉल्ड केस इन एपोजिशन ऑफ द फर्स्ट नाउन। देन व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, ठीक है। तो एपोजिशन होगा तो पॉजिटिव साइन जो है, पॉजिटिव साइन मीन्स एपिस्ट्रॉफी एस, उसको हम केवल लास्ट जो नाउन होगा उसके साथ ऐड करेंगे। अगर हम राइट कर देंगे टैगोर्स द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलिज, ठीक है, टैगोर्स द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि, तो हमारा तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट होगा ही नहीं, वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल तो ये कहता है अगर एपोजिशन है, हमारा जो नाउन है वो एपोजिशन है, तो हमें ओनली पुट टू द लेटर ओनली, पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, लास्ट वाले के साथ ही हमें पॉजिटिव साइन को राइट करना है। तो हम टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि, तो हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, हमारा सेंटेंस अब करेक्ट है, क्योंकि हमारा रूल तो यही कहता है व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन, when two nouns are in apposition possessive sign is put to the letter only. When two nouns are in apposition, apposition means, ध्यान रखिएगा, apposition means when two nouns are used for one person, two nouns
are used for one person. Second noun is called case in apposition of the first noun. It is called apposition. Then when two nouns are in apposition, possessive sign is put to the latter only. ये बात ध्यान रखिएगा. तब हम पॉजिटिव साइन को, अगर हमारा पोजीशन केस है तो हम पॉजिटिव साइन को जो है वो लास्ट नाउन के साथ राइट करते हैं. पॉजिटिव साइन मीन्स एपिस्ट्रॉफी एस, उसे हम लास्ट नाउन के साथ राइट करते हैं. एग्जाम्पल टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि. Now students, we are discuss about rule 8. Rule 8 is apostrophe is not used with two consecutive nouns. Means double पॉजिटिव केस. ठीक है, डबल पॉजिटिव केस. अगर डबल पॉजिटिव केस है तो हम दोनों, ठीक है, दोनों नाउन्स के साथ टू कॉन्सेक्टिव नाउन्स, ठीक है, दोनों नाउन्स के साथ एपिस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हैं. रूल 8 तो यही कहता है एपिस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विथ टू कॉन्सेक्टिव नाउन्स. कॉन्सेक्टिव नाउन्स मीन्स डबल पॉजिटिव केस. ठीक है, अगर हमारा जो नाउन है वो डबल पॉजिटिव नाउन्स है तो हम दोनों नाउन्स के साथ एपिस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे. एपिस्ट्रॉफी इज़ नॉट यूज्ड विथ टू कॉन्सेक्टिव नाउन्स. ठीक है, टू कॉन्सेक्टिव नाउन्स के साथ एपिस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करते. मीन्स दोनों नाउन्स के साथ हम एपिस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करेंगे. डबल पॉजिटिव केस में हम डबल पॉजिटिव नाउन्स के साथ एपिस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करेंगे. डबल पॉजिटिव केस में हम दोनों नाउन के साथ, डबल नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करेंगे. इसका रूल है. अब रूल क्या है? अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी इज़ नॉट यूज्ड विथ टू कॉन्सेक्टिव नाउन्स. अगर हमारे सेंटेंस में टू कॉन्सेक्टिव नाउन्स होते हैं, डबल पॉजिटिव केस होते हैं, तो हम दोनों नाउन्स के साथ एपिस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करेंगे. तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे. दैट टाइम वी आर फर्स्ट राइट पोजिशन. ओके, दैट टाइम वी आर फर्स्ट राइट पोजिशन प्लस ऑफ प्लस फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन के साथ ऐड करेंगे एपिस्ट्रॉफी एस. फर्स्ट नाउन एपिस्ट्रॉफी एस प्लस सेकेंड नाउन. क्लियर? फर्स्ट राइट पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट राइट पोजीशन, फर्स्ट राइट पोजीशन प्लस ऑफ प्लस फर्स्ट नाउन एपिस्ट्रॉफी एस प्लस सेकेंड नाउन. सी एग्जाम्पल, द वॉच, इट इज़ अ पोजिशन, इट इज़ अ पोजिशन. इसी पर तो हक है, इसी पर तो अधिकार हम शो कर रहे हैं. ठीक है, वॉच पर. देन फर्स्ट वी आर राइट पोजिशन द वॉच, एड ऑफ फर्स्ट नाउन रीता, एड एपिस्ट्रॉफी हैज रीताज. सेकेंड नाउन सिस्टर हैज लॉस्ट. ओके, सेंटेंस इज द वॉच इज रीताज सिस्टर हैज लॉस्ट. The watch of Rita's sister has lost. क्लियर? जब डबल पॉजिटिव केस हो तो हम डबल पॉजिटिव केस में दोनों नाउन्स के साथ, ठीक है, कॉन्सेक्टिव नाउन्स, ठीक है, डबल पॉजिटिव केस में दोनों नाउन्स के साथ एपिस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं राइट करते हैं. ठीक है, उसमें उस टाइम हम ये रूल फॉलो करते हैं. उस टाइम रूल फॉलो करते हैं फर्स्ट राइट पोजिशन प्लस ऑफ प्लस फर्स्ट नाउन एड एज प्लस सेकेंड नाउन. ठीक है, पोजिशन द वॉच प्लस ऑफ फर्स्ट नाउन रीता एपिस्ट्रॉफी एज रीताज सिस्टर हैज लॉस्ट. एग्जाम्पल, द वॉच ऑफ रीता सिस्टर हैज लॉस्ट. क्लियर? रूल 8, एपिस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विथ टू consecutive nouns, double possessive case. That time we are follow these rules. That time we are follow these rules. First we are right position plus of plus first noun apostrophe s plus second noun. Okay, the watch of Rita's sister has lost. It is clear? Now we are discuss about rule 9. Rule 9 is possessive sign is not used with possessive pronouns. Okay, means possessive sign का यूज़ हम लोग क्या possessive pronoun के साथ नहीं करते हैं. Possessive pronouns means mine, his, hers, yours, ours, its, theirs.
ठीक है, ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस है और इसके साथ हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज नहीं करते हैं। पॉजिटिव साइन इज नॉट यूज्ड विथ पॉजिटिव प्रोनाउंस माइन, हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, इट्स, theirs. It is possessive pronouns. Now we are discuss about rule 10. Rule 10 is if else is used after somebody, nobody, anybody, then apostrophe is used with else. Okay? Means if else इज यूज्ड आफ्टर, एल्स जो है यूज हो रहा है किसके बाद, समबडी, नोबडी, एनीबडी, देन एपिस्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ एल्स। अगर हमारे सेंटेंस में एल्स यूज हो रहा है आफ्टर समबडी, नोबडी, एनीबडी, दैट टाइम तब हम लोग क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे आफ्टर एल्स। ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं विथ एल्स, एल्स के साथ। ठीक है, इसी एग्जाम्पल, this book is not mine, it is somebody else, then somebody else's. Okay, rule 10 is clear. If else is used after somebody, nobody, anybody, then apostrophe is used with else. Example, the book is not mine, it is somebody else. ओके, देन यूज्ड विथ एल्स एपिस्ट्रॉफी एस। ओके, अगर हम जो है एल्स वर्ड का यूज़ आफ्टर समबडी, नोबडी, एनीबडी करते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ विथ एल्स, ठीक है, एल्स के साथ राइट करेंगे। देन स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स इट इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।